गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे यहाँ पे आए हैं मतलब इंटरव्यू के लिए एंड सर CWC के सीनियर जनरल मैनेजर हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. सर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Yeah, I am Amit Puri, Senior General Manager Finance of Central Warehousing Corporation, Delhi. I am a chartered accountant by profession, and I am responsible for the entire finance and activities at CWC Corporate Office located at Hauskas, Delhi. ओके सर। एंड सर CWC के बारे में सब बताइए सर कि CWC क्या काम करती है एंड इसका ब्रांचेस कैसा है, कितना है ब्रांचेज है, इंडिया में कैसा प्रेजेंस है। See, as far as Central Warehousing Corporation is concerned, it is a body created through an Act of Parliament 68 years back. So basically, we are an age-old organization, and we function as per the provisions of Warehousing Corporation Act 1962, and our functions are defined in the Warehousing Corporation Act only. We are basically into warehousing, logistics, supply chain management, pest control services, and other added services related thereto. So basically, our customers are Food Corporation of India, farmers, and all the companies who require warehousing and logistics services either at general warehouses or at CFS ICDs of India. So net I would like to say that there is a network of 14 regional offices divided pan India, east, south, north, west, and actually through these 600 warehouses we are giving various type of services to the consumers, and these processes are set, and Ministry of Consumer Affairs is our administrative ministry. And the company last year has achieved record turnover of 2,304 crore with record profit of 590 crore. There is no debt on CWC. We are a self-reliant company, and 100% is on profit. We have not even a single 1 rupee debt. बस फिर तो बहुत अच्छी कंपनी है CWC। तो सर अच्छी बात है सर। और सर इसमें वर्किंग के बारे में बताएंगे सर, मतलब उसमें CA हायर होते हैं, CMA हायर होते हैं या MBA हायर होते हैं इसमें, तो वो क्या काम करते हैं इनमें? मैं बताता हूँ आपको। सी बेसिकली एज फार एज दिस CA, CMA एंड ICWs are concerned, company secretary, they are professionals. They are professionals in their own field. So what our always endeavor is that we hire the best of talent available in the industry. So as far as chartered accountants, cost accountants are concerned, they are mainly working in the finance and accounts department of CWC, and also some persons are working in business side also. So they give us the professional advice as far as the day-to-day functioning is concerned, as far as the day-to-day accounting is concerned. One major achievement of CWC which I would like to highlight is that last year we have prepared our accounts as per Indian accounting standards, Ind AS. So our accounts are comparable with our peer group companies, and as such the systems are in place. So the professionals are working as accounts in charges also in the regional offices, as section heads in corporate office also. So there are a lot of opportunities for the professionals. तो सर इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है इंडिया में? See, as per we work as per Government of India rules, and as per Government of India rules, the posting can be at any place because there is a transfer policy of the corporation. And as far as place of posting is concerned, the major regional offices in West are Ahmedabad also there, Mumbai is there, Bhopal is there, Bangalore, Chennai, you name it. At every place we are there. In North we are at Chandigarh, Jaipur, Delhi, and at East we are at Bhubaneswar, Patna, and all other places. So we are covering all the major states of India. The posting can be at any place based on the talent of the individual and based on his credentials. तो बेसिकली मतलब सर कि हर जो आपने लोकेशन बताया अभी, तो हर लोकेशन में अकाउंट्स ऑफिसेज हैं? Accounts offices हैं. ओके ओके। तो सर अच्छी बात है सर। इसमें जो CWC जो काम करती है सर, ये पूरा 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये? सर ये बेसिकली 100% सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें 55% स्टेक गवर्नमेंट का है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, और अल्टीमेटली अगर ये कंपनीज एक्ट में कंपनी बनेगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। मेजर शेयर क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, तो सारे जो सिस्टम और प्रोसेस हैं और जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स रहते हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से ही लेते हैं। ओके सर। सर CWC का सर कुछ फ्यूचर के बारे में बताइए, कैसे ये ग्रोथ कर सकती है और कहाँ मतलब जाएगी ये? सी एज फार एज लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज कंसर्न्ड, इट इज़ अ वेरी वास्ट सेक्टर आई वुड से। सो जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, यहाँ पे कभी स्लम या कहीं भी इसमें रिसेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि लॉजिस्टिक में अल्टीमेटली आपका ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग रहता है। जितनी भी आपकी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको माल की स्टोरेज करनी रहती है साइंटिफिक तरीके से, और उनको माल का ट्रांसपोर्टेशन भी करना रहता है। अभी हम 3PL, इसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहते हैं, उस एरिया में भी आ गए हैं, और अभी हमने 3 ट्रेन्स खरीदी हैं, जिसमें से 2 ट्रेन्स हमारे पास आ गई हैं और वो ऑपरेशनल हैं डिफरेंट रूट्स पे। तो अब हम कंटेनर रेल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं खुद की ट्रेन में। अच्छा। अब हमारी अपनी खुद की ट्रेन है।
और ये नेटवर्क बढ़ेगा, कंटेनर्स हमारे खुद के हैं, कस्टमर्स हमारे खुद के हैं। तो जो बिज़नेस पहले प्राइवेट सेक्टर में जाता था, वो बिज़नेस एक गवर्नमेंट में एक सिक्योरिटी रहती है, गवर्नमेंट में एक फेथ रहता है, गवर्नमेंट में एक प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स रहते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर आप जो इसमें स्टोरेज का काम करते हैं, इसमें तो पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दोनों करते हैं आप काम इसमें? देखिए, चाहे वो पेरिशेबल हो या नॉन पेरिशेबल हो या ईटेबल हो या नॉन ईटेबल हो, जो भी आइटम है उसकी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ पे, उसकी स्टोरेज करने की एक प्रैक्टिस है। जैसे कॉटन है, कॉटन को ऐसी जगह नहीं रखा जा सकता जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या आग लगने का खतरा हो। इसी तरह जैसे गेहूं है, वहाँ नहीं रखा जा सकता जहाँ मॉइस्चर का खतरा हो। तो अल्टीमेटली जितनी भी हमारी स्टोरेज प्रैक्टिसेस हैं, हमारी कमोडिटी वाइज हैं, और हमारे ये सारे मैनुअल्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। ओके, तो सर बेसिकली जितना भी तरह का गुड्स होता है आप लोग सबका स्टोरेज करते हैं, हाँ सबके हिसाब जी। से टेलर मेड आपके पास है रखा हुआ है? कस्टम मेड, टेलर मेड सॉल्यूशन है हमारे पास। ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, इसमें आप ये मुझे और थोड़ा बताइए कि आप मतलब CWC के बारे में, जो इसमें जैसे जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे एज एन अकाउंटेंट, जैसे अभी 40 का पे स्केल आपके यहाँ आया था, तो इसका फिर मतलब फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगा इसमें? किसके मतलब क्या बनेंगे अकाउंटेंट के बाद, क्या बनेंगे? फ्यूचर क्या है कि देखिए, अभी नई रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे नोटिफाई हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें एक प्रोग्रेशन प्लान है। अगर हमारे यहाँ कोई अकाउंटेंट आता है या एक डिप्टी मैनेजर आता है या असिस्टेंट मैनेजर आता है या DGM आता है, तो उसका एक प्रोग्रेशन स्केल है। मोस्टली 5 से 4 साल में हर एक लेवल पे एक प्रमोशन का प्रावधान है, लेकिन प्रमोशन होता है उस आदमी के अपने टैलेंट पे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो हर 3 से 4 साल में प्रमोशन 100% पक्का है। तो सर पहले से अकाउंटेंट बने, अकाउंटेंट के बाद क्या मिलेगा सर? अकाउंटेंट के बाद जो लास्ट हमारा सिस्टम था उसमें असिस्टेंट मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर के बाद सीनियर असिस्टेंट मैनेजर है, उसके बाद हमारा मैनेजर है, उसके बाद हमारा ये है आपका AGM, फिर DGM, फिर GM, फिर सीनियर GM, और उसके बाद अपना अभी जो लास्ट डायरेक्टर फाइनेंस वगैरह पोस्ट। मतलब बेसिकली आप सर सबसे बड़े पोस्ट में पहुंच चुके हैं। बड़ी पोस्ट की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक कैरियर पाथ तो यहाँ अवेलेबल ही है, सब्जेक्ट टू गुड परफॉर्मेंस। ओके सर। सर आप इसके अलावा कुछ और बताना चाहें CWC के बारे में अपनी तरफ से? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि नेचर ऑफ वर्किंग के बारे में या ऐसे कुछ? देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक नेचर ऑफ वर्किंग की बात है, जब कोई कंपनी पुरानी हो जाती है, 68 ईयर्स हैव ऑलरेडी पास्ट, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हम लोग इस फील्ड में नहीं हैं। और हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो हमारे यहाँ बिजनेस और कस्टमर रिलेशन है, वो ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड है। अगर कोई नई कंपनी 2 साल पहले मार्केट में आती है, तो हो सकता है उसके पास इतनी चीज़ें ना हो, इतना एक्सपीरियंस ना हो। चूँकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, 68 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। तो 68 साल के एक्सपीरियंस के बाद, चाहे वो कस्टमर का एरिया हो, चाहे वो एम्प्लॉई का एरिया हो, हर एरिया में हमें आज तक कभी ऐसी कोई ऐसा स्टैग्नेंसी नहीं दिखी। किसी ने ये हमने नहीं सुना कि कोई एम्प्लॉय स्टैग्नेंट हो गया हो या कोई कस्टमर डिससेटिस्फाई हो। यहाँ कस्टमर फीडबैक सर्वे भी होता है, और टाइम टू टाइम हम कस्टमर से सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फीडबैक भी लेते रहते हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर की बात करें तो इट इज़ द बेस्ट एज आई कैन से। ओके सर। तो बेसिकली सर CWC अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी तरह का मतलब गुड्स के लिए जो स्टोरेज होता है ऑल इंडिया में हर जगह है, वो मतलब हर जगह ही होता है बेसिकली ना, हर जगह ही अवेलेबल है। हाँ जी। और जितने भी इंडिया के लोकेशंस हैं, सारी हमने कैटर की हुई हैं, जितने भी इंडिया के क्लाइमेट्स हैं, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी स्टोरेज की प्रैक्टिस भी चेंज हो जाती है। सर्दी में के मौसम में स्टोरेज की अलग तरीके से प्रैक्टिस रहती है, गर्मी और बरसात में अलग रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि जितना भी हमारा स्टोरेज के वेयर हाउसेज हैं, 600 वेयर हाउसेज हैं, वो पैन इंडिया अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कंडीशंस में हैं, और उस हिसाब से बनाए गए हैं कि वहाँ पे माल खराब ना हो। फिर तो सर मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है CWC का ऐसे देखा जाए तो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए सर हमारे चैनल पर सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट।